और बीजेपी की इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, स्मृति ईरानी संबोधित कर रही है, आपको सीधा लिए चलते हैं। That George Soros wants a government which is pliable to his needs is more than evident from his statements. That he has pronounced funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi, is significant. As a Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, this is an appeal to every Indian citizen. Every 5 years, we all democratically elect a government to serve the needs and aspirations of India. We as a nation state, during COVID, became the pharmacy to the world. We as a nation state are witness how Prime Minister Modi has ensured food security for 800 million Indians. We as a nation state are witness to the Amrit Kal budget, which has the highest allocation for defense. We as a nation state are, together with Prime Minister Modi, laying the foundation for the future of our country that will not only inherit our dreams, but a resilient and stronger economy. It is to be highlighted that when India rose to the 5th largest economy of the world, when the President of the United States of America, the Prime Minister of England, the President of France, publicly extended gratitude to the Indian Prime Minister and India for enabling employment not only in India, but also these 3 designated nations. Such is a time where the imperialistic intentions of an entrepreneur come to light. Today, as a citizen, I call upon every individual and organization, societal or political, to denounce the intention of this individual who seeks to demonize our democracy, weaken our democratic interests, and who brings an onslaught to the economy of India, all so that he can personally gain. Those who Mr. Soros finds pliable need to know that India has defeated imperialistic designs before and shall do so again. Those who support Mr. Soros need to know that democracy has prevailed in India and will continue to do so, and particularly as a Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, these designs to weaken Indian democracy will be met with the might of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत
जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में यह चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अमृतकाल का ये बजट भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करता है। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। कोई प्रश्न है तो रविकांत राय, टाइम्स नाउ। 1 मिनट अंकित जी। रविकांत, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई साजिश रची जाए? देखिए, ये मात्र छवि को धूमिल करने का दुस्साहस नहीं है। अगर आप उस वाक्य को बड़ी बारीकी से सुने, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं।
तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़ें। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है। अंकित गुप्ता एबीपी। की बात करें तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो हमलावर रहे हैं, वो लगातार कहते रहे कि प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पिछले 3-4 सालों से उनके इस तरीके के बयान दुनिया के तमाम जॉर्ज सोरोस के ऊपर जो है वो स्मृति ईरानी ने हमला बोला है और जॉर्ज सोरोस का टारगेट नंबर 1 नेशनलिस्ट ये कह रहे हैं और मोदी जो है वो टारगेट नंबर 1 है। यहाँ पर एक बड़ा आरोप भी स्मृति ईरानी ने लगाया है और अभी फिलहाल मीडिया को संबोधित कर रही है। आपको सुनवाते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार यह कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। आमोद राय टीवी 9। मैं आमोद जी आपका ध्यान आकृष्ट करूं, जैसा कि यहां एक पत्रकार ने कहा कि ये पहला कटाक्ष नहीं है नरेंद्र मोदी पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। जॉर्ज सोरोस किसको फंड करते हैं ये मुझसे बेहतर आप पत्रकार जानते हैं। मोहित भट्ट टाइम्स नाउ प्लीज। यस, I will only say this. Any political organization that seeks to serve the interest of India will stand in solidarity with India and against George Soros. Any political organization that matches steps with George Soros will stand exposed in front of the Indian electorate. Yes, it is true that George Soros has not only attacked Prime Minister Modi, he has attacked the intention and the will of the Indian Parliament. That now he seeks to attack democratic processes in India is an issue I find no political organization that is constitutionally steeped in protecting Indian interest can support. ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। तो बीजेपी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। स्मृति ईरानी का बयान, भारत पर हमला हम स्वीकार नहीं करेंगे। जॉर्ज सोरोस पर बड़ा निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी को इस वक्त आप सुन रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने हिंदुस्तान का अपमान किया, इस बात का जिक्र स्मृति ईरानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने ऊपर वार सह लेंगे, लेकिन ये वार देश पर है और हम ये वार नहीं सहेंगे। उन्होंने एक फंड का ऐलान किया, $1 बिलियन का, जो वो हिंदुस्तान में और जहां जहां हिंदुस्तान के इंटरेस्ट है वहां पर संचारित करेंगे ताकि हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। उन्होंने, मैंने पहले भी एक पत्रकार मित्र से यहां कहा,
मोदी की इमेज पर वार पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार का ऐलान उन्होंने पहली बार किया है जॉर्ज सोरोस ने। इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। और मैं पुनः कहती हूं, भाजपाई हूं इसलिए नहीं, हिंदुस्तानी हूं इसलिए कि एक विषय है जिस पर किसी भी राजनीतिक दल का किसी और राजनीतिक दल के साथ मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि ये आक्रमण, दिस वॉर इज ट्राइंग टू बी माउंटेड अगेंस्ट इंडिया, एंड व्हाट स्टैंड्स बिटवीन दैट वॉर एंड आवर कंट्रीज इंटरेस्ट्स इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्रशांत, न्यूज 24, उसके बाद यतीन्द्र जी और संजय शर्मा। ये अंतिम प्रश्न होगा, तीन ही। जी, जॉर्ज सोरोस कौन है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। और दूसरी बात, जिस तरह की गंभीर बातें उन्होंने की है, आपको लगता है कोई कानूनी एक्शन? भारत पर हमला स्वीकार नहीं होगा, स्मृति ईरानी का यह बड़ा बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी मुख्यालय से। आप स्मृति ईरानी को इस वक्त सुन रहे हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जॉर्ज सोरोस ने हिंदुस्तान का अपमान किया, साजिश के आगे हिंदुस्तान कभी नहीं झुकेगा और हर एक हिंदुस्तानी जॉर्ज सोरोस को जवाब देगी। वो निश्चित रूप से कार्रवाई करती हैं। यतीन्द्र, टीवी 18। मैं इतना ही कहूंगी कि जिन जिन को वो पैसा पहुंचाते हैं, ये उनके लिए संदेश है कि आप चाहे इन इरादों के साथ वो पैसा प्राप्त करते हो कि आप हिंदुस्तान को कमजोर कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना कमजोर होगा, ना झुकेगा, बल्कि आगे ही बढ़ता जाएगा। अंतिम प्रश्न है लोकमत से संजय शर्मा। मैं इतना ही कहूंगी, ये सारे विषय तब उभरे जब हिंदुस्तान विश्व की पांचवी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और आर्थिक ताकत बनकर उभरी। और मुझे लगता है कि हाल में, दोबारा कहती हूं, चाहे वो राष्ट्रपति अमेरिका के हों, चाहे वो यूके के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति फ्रांस हों, उन्होंने हिंदुस्तान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सराहना की कि उनके देशों में आज आर्थिक व्यवस्था को हिंदुस्तान के साथ समन्वय में हम लोग एक सृजन देख रहे हैं, एक नए भारत के निर्माण को देख रहे हैं। उस सराहना के बाद तिलमिलाहट जो है वो जॉर्ज सोरोस के इस एक स्टेटमेंट से सामने आती है। जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि एक कमजोर देश हो, जिसमें कमजोर सरकार हो, जो उनके दिशा निर्देश अनुसार चले। ये नया हिंदुस्तान है, कमजोर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये नया हिंदुस्तान है, कमजोर हिंदुस्तान नहीं। जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधा स्मृति ईरानी ने। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का उन्होंने अपमान किया और ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा।